हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवीएस क्लासेस। ठीक है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਲਈ 21 ਡੇ ਚੈਲੰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਟ ਕੱਲ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ 21 ਡੇਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ, ਮਿਡੀਵਲ, ਮਾਡਰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ 5 ਡੇਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਸੀਐਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਹ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕੰਬੋ ਪੈਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਬੋ ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀਕੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਬਟਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੰਬੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕੋਨਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੋਟਲ 7 ਸੈੱਟ ਨੇ, ਮਿਡੀਵਲ ਦੇ 6 ਨੇ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਦੇ 12 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਿਡੀਵਲ ਨੂੰ 3 'ਚ, ਮਾਡਰਨ ਨੂੰ 4 'ਚ, ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ 35 ਸੈੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ 16, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ 10 ਸੈੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਦੇ ਟੋਟਲ 7 ਸੈੱਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਡੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ 3 ਸੈੱਟਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ 3 ਸੈੱਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਸੈੱਟਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਅਗਲੇ 4 ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਾਏ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ, ਐਜ਼ ਏ ਕੁਇਜ਼, ਐਜ਼ ਏ ਮੌਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੇ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੈ 6 ਟੈਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 6 ਟੈਸਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਐਪ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਟੌਪ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 21 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੀ ਕਿ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
तो देखो अज मैं फिजिकल जियोग्राफी का पहला सैट कर रही हूँ। वैसे तो कल तो आप हिस्ट्री दी क्लासा कंटिन्यू करांगे, बट अज वैसे मैं फिजिकल जियोग्राफी का चुक्या। ठीक है, ये मैं लगातार क्वेश्चन कराऊंगी पहले भी। ठीक है, वैसे आप मैं थोड़ा रैंडमली क्वेश्चन पूछा करूँगी, जिमें कल आप करना वा। कल अपना की टारगेट के आप एंशियंट हिस्ट्री दे पहले 3 सैट करने हैं। ठीक है, कल अपना एक काम है, इन्हें मैं रैंडमली तुहानू क्वेश्चन पूछूंगी तो टेस्ट लूँगी। ठीक है, तो हम आप करते हैं आज जियोग्राफी का सैट 1। ठीक है, तो देखो की टारगेट है अपना, देखो क्वेश्चन का आंसर तुम देना है। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करूँगी, उनके क्वेश्चन का आंसर दिया करना। ठीक है, इतने क्वेश्चन के हु कॉइंड द वर्ड जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द किसने दिता। ठीक है, जियोग्राफी शब्द किसने दिता, पटोलेमी। जियोग्राफी शब्द किसने दिता, ये अपना क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की है पटोलेमी, एराटोस्थेनीज, ठीक है, हेकोटस ते हेरोडेटस। ठीक है, 4 परसन के नाम ने, इन्होंने जो पूछा कि किने ये शब्द दिता। तुसीं अपना आंसर कमेंट च दसना है पूरी ईमानदारी नाल। हाँ जी, तो यदा राइट आंसर की है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यदा राइट आंसर है, एराटोस्थेनीज। ठीक है, यदा राइट आंसर है। तो हुण हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इवें साडे स्टडी मटीरियल दी हुई है, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी होगी। ठीक है, कि ये कि एक किसी के एक ग्रीक परसन सीगे। ठीक है, जिहड़े कि जियोग्राफर सी, पोइट सी, एस्ट्रोनॉमर सी, मतलब बहुत सारिया फील्ड्स की इन्होंने जानकारी सी। ठीक है, ये चीज़ है कि एक ग्रीक परसन सी, जिहड़े मैथमेटिशियन सी, जियोग्राफर सी। एक चीज़ और कि ऐप के उपर की है कि जोड़े भी PDF ने, जो भी स्टडी मटीरियल है, ठीक है, उन्होंने उन्होंने देख भी सकते हो कि किमें दे रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत एक दो तो फ्री सैंपल भी पाए हुए हैं, वो तुम देख भी सकते हो कि तुम किमें उन्होंने पढ़ने च हेल्प होगी। अगे देखो नैक्सट क्वेश्चन, यदा आंसर देना है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड, नक्शे बनाने की कला की कहा जाता है, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी, फोटोग्रामेट्री ते मैपिंग। राइट ऑप्शन तुम चूज करनी है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, तो राइट आंसर की है कार्टोग्राफी, नक्शे बनाने की कला की कहा जाता है कार्टोग्राफी। एक चीज़ और दसदा कि एक क्वेश्चन होर पूछा जाता कई बार कि सब तो पहला नक्शा किने बनाया सी, फर्स्ट मैप किने बनाया सी। ठीक है, फर्स्ट मैप किने बनाया सी, पहला नक्शा किने बनाया सी, तो परसन का नाम की सीगा एनेक्सीमेंडर। ठीक है, एनेक्सीमेंडर। ठीक है, ये फर्स्ट परसन से जिन्होंने की पहला नक्शा बनाया सीगा। तो हुण आपां गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की। नैक्सट क्वेश्चन की है, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन इज, सब तो डूंगी ट्रेंच इंडियन ओशन की केड़ी आ। ठीक है, जावा ट्रेंच, एलुटियन, एटाकामा, डायमंटीना। इन्हें चो केड़ी की है फर्स्ट ट्रेंच है, तुसीं आंसर देना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, अपना आंसर कमेंट करके दसो। कमेंट फास्ट।
हाँ जी, तो राइट आंसर की है ऑप्शन नंबर 1 जावा ट्रेंच। ठीक है, जावा ट्रेंच इज द राइट आंसर। ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਂਚ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਂਚ। ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਦ ਲੇਅਰ ਵੇਅਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਐਬਸੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਹਾਈਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। यानी कि ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਵਧਦਾ ਵਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। हाँ जी, तो द राइट आंसर की है ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर इज द राइट आंसर। आ स्ट्रेटोस्फीयर के बारे होर भी कई जानकारी दी हुई है, जिवें इत्थे दस्सिया वा कि स्ट्रेटोस्फीयर दे विच ओजोन लेयर हुंदी आ जिहड़ी कि यूवी रेज नूं ठीक है धरती तक नहीं आउण दिंदी बल्कि आपदे विच समा लैंदी आ, इस करके इहदा टैंपरेचर की आ वधदा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी नाल दित्ती हुई आ। एक्सप्लेनेशन पता होवे ते आपां नूं याद रखना ईजी हुंदा कि जे आ चीज़ होई सी तां क्यों होई सी, रट्टा नहीं मारना पैंदा। ठीक है, एक चीज़ मैं होर तुहानूं दस्सना चाहूँगी कि एटमोसफेयर दी लेयर्स किवें हुंदियां जिवें धरती आ। ठीक है, ये तो सब तो नेड़े जिहड़ी लेयर है किहड़ी है ट्रोपोस्फीयर, मैं कला ट्रोपो लिख रही हां, इस तो उपर की हुंदी है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, उस तो ऊपर मीजोस्फीयर, उस तो ऊपर थर्मोस्फीयर, सब तो बाहर जितों आप एग्जिट हो जाते हैं एग्जिट के वर्ड बने एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये लेयर्स होंदियां ने। ट्रोपोस्फीयर सब तो नेड़े आ, इत्थे की बदल वगैरह क्लाउड्स वगैरह होंदे, इत्थे मीह पैंदा वा। स्ट्रेटोस्फीयर दे विच आपां नूं हुणे पता लगा कि ओजोन लेयर हुंदी है जिहदे करके की है इहदा तापमान वध रहिंदा वा। ठीक है, इस तो अलावा जहाज वगैरह भी स्ट्रेटोस्फीयर 'च ही उठदे आ, क्यों क्योंकि नीचे वाले 'च की बदल वगैरह होंदे, इस करके स्ट्रेटोस्फीयर 'च जहाज वगैरह उठदे आ। मीजोस्फीयर दे विच की हुंदा वा मैट्रोस वगैरह हुंदे आ, उही उल्का पिंड वगैरह ये हुंदे आ। ठीक है, थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर दे विच की सैटेलाइट्स वगैरह होंदे आ, सैटेलाइट कम्यूनीकेशन जिहड़े यूज कीते ने सैटेलाइट्स। ठीक है, ते एक्सोस्फीयर दे विच की हुंदा वा स्पेस सर्च सेंटर। ठीक है, जो भी स्पेस सर्च सेंटर वगैरह बनाए हुए स्पेस दे विच होंदे आ। ठीक है, ये चीज़ है। थर्मोस्फीयर दे विच एक आइनोस्फीयर हुंदा वा, क्योंकि देखो थर्मोस्फीयर का टैंपरेचर बहुत ज़्यादा हुंदा वा, इस करके जिहड़ियां ते गैसेस वगैरह पईयां हुंदियां ओह आइनां दे विच टुट जांदियां। ठीक है, पॉजिटिव ते नैगेटिव एनाइन ते कैटाइन आइनां दे विच टुट जांदियां, इस करके इत्थे आइनोस्फीयर भी प्रेजेंट हुंदा। ਇਹਦੀ पूरी एक्सप्लेनेशन सीगी। नैक्सट हम आप अगे चलते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम की हुंदा वा, बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोजीओकैमिकल सिस्टम, फिजियोकैमिकल सिस्टम ते बायो इकोलॉजिकल सिस्टम किहड़ा हुंदा, इकोलॉजिकल सिस्टम किहड़ा हुंदा, ये तुसीं आप सोचना वा ते कमेंट करके आंसर दसना। कमेंट द राइट आंसर। एंड ते तुसीं ये दसना कि तुहाडे टोटल किन्ने क्वेश्चन सही होए। ठीक है, ये भी तुसीं दसना वा। सो आपदे आंसर्स नाल दी नाल कमेंट करदे रहियो ते लास्ट ते टोटल करियो कि तुहाडा की लैवल है, तुहानूं पता चलेगा कि तुहाडी तैयारी किन्नी क हैगी है। ठीक है, बजाय कि फिक्र कर ले एग्जाम डेट नहीं है, असीं इस गल दी फिक्र करिए कि साडी तैयारी किन्नी क है जे एग्जाम डेट आ जाए। जे कोई कह दे कल एग्जाम है तो असीं किन्ने क रेडी हैं। हाँ जी, तो राइट आंसर दसो की है इहदा, तो इहदा राइट आंसर है बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम किहड़ा हुंदा जिथे कोई जिउंदियां जागदियां चीज़ां भी हुंदियां है ना। तो देखो इकोलॉजिकल सिस्टम किहड़ा हुंदा वा जिहदे च अबायोटिक
जानी कि नॉन लिविंग, अबायोटिक की नॉन लिविंग, तो बायोटिक जानी कि लिविंग चीज़, ठीक है, बायोटिक जानी कि लिविंग, ठीक है। तो कोई भी जमदियां जागदियां चीज़ां लिविंग चीज़ां जानी कि पौधे, जानवर, तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह सारे, ठीक है, वो सारे की आ नॉन लिविंग चीज़ां जानी कि हवा मिट्टी पानी नाल इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। वो सारे सिस्टम नूं की कहते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम। तो एक तरह का बायोलॉजिकल सिस्टम होया, तो ये स्टडी नूं की कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। कोई भी लिविंग चीज़ अपने आले दुआले नाल किवें इंटरैक्ट करती है, ठीक है, वो स्टडी की कहते हैं इकोलॉजी। सिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो नैक्सट आप चलते हैं अगले क्वेश्चन वाल, ठीक है। आफ्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इन इंडिया हैज़ अ लार्ज कॉन्टिनेंट ऑफ एंशिएंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बीन नेम्ड, कहते कि वो किहड़ी इन्हां चों प्रजाति है, ट्राइब है जिहदे नां ते किसी कॉन्टीनेंट का नाम रखा गया सी पुरातन समय में, ठीक है। तो प्रजातियों के नाम दसे हुए हैं, ट्राइब्स के नाम दसे हुए हैं कि संथाल्स, वील्स, मूरियास, इतने यू है, ठीक है, मूरियास ते गोम्स, ठीक है। इन्हां चों किहड़ी ट्राइब के नाम के उत्ते एक कॉन्टीनेंट का नाम है, ये तुसीं दसना है कमेंट दे विच, कमेंट फास्ट। हाँ जी, तो द राइट आंसर हैगा ये गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब के नाम के उपर एक जगह का नाम रखा गया सी, एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। गोंड ट्राइब के नाम के उपर एक जगह गोंडवाना का नाम रखा गया सी, जिन्होंने पहला गोंडवाना लैंड कहते सी, ठीक है। कितने कितने सी वो दसिया हुआ कि किहड़े किहड़े एरियाज इंक्लूडेड सी, ठीक है। ये सारे एक्सप्लेनेशन तुसीं पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लै सकते हैं हुण भी। तो मैं तुहानूं होर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जिवें संथाल जी आ, ठीक है, ये ट्राइब कितों बिलोंग करती है, ये ट्राइब हैगी है झारखंड की, ठीक है। आ फर्स्ट ट्राइब कितों दी है, झारखंड की, ठीक है। भील ट्राइब तो बहुत सारे स्टेट्स के पाई जाती है, ठीक है। मूरिया ट्राइब कितों दी है, छत्तीसगढ़ की, मूरिया छत्तीसगढ़ की ट्राइब है। कई बार मैच का कॉलम आ जाता होंगे कि मैच करो, ठीक है। एक चीज़ होर कि सब तो वध ट्राइबल पॉपूलेशन किहड़ी स्टेट च है, ਇਹਦਾ आंसर गैस करना बहुत ईजी है। देखो सब तो वध ਜਿਹੜੀਆਂ ट्राइब्स है कितने ਰਹਿੰਦੀਆਂ, जंगलों वगैरह च ਰਹਿੰਦੀਆਂ, आदिवासी लोग जंगलों च ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ सब तो वध जंगल कितने है, फॉरेस्ट कवर सब तो ज़्यादा कितने है, MP च, ठीक है। MP ਦੇ ਵਿੱਚ फॉरेस्ट कवर ज़्यादा वा, तो इतों ਆਪਾਂ ਨੂੰ हिंट मिलता वा कि ਜਿਹੜੀਆਂ सब तो ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स ਜਾਂ ट्राइबल पीपल है इंडिया के वो MP च ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। ये अपना राइट आंसर होगा जो अपन कोई पूछे कि सब तो वध ट्राइबल पीपल कितने ਰਹਿੰਦੇ ਆ। तो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, द कलर ऑफ लोमी सॉइल, ठीक है। वैसे तो पेपर इंग्लिश होना बट फिर भी मैं दसनी लोमी सॉइल किहड़ी हुंदी है, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी का रंग किवें दा हुंदा, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी का रंग किवें दा हुंदा वा। राइट आंसर तुसीं गैस करना, टाइम स्टार्ट्स नाउ, आंसर कमेंट जरूर लिखिया जी। जो तुम एक्टिव रहोगे क्लास के दौरान कमेंट वगैरह करोगे तो थानू लगेगा कि हाँ असं कुछ यूजफुल कर रहे हैं, क्लास से ध्यान बनया रहता, ठीक है। एल्स नहीं तो वीडियो उनको सुन के बस उनका लंघ जाए, ना आपका कुछ लैवल पता चलता, तो ना कि प्रॉपर बेनीफिट हो पाता। कमेंट करोगे तो पता चलता कि असं कितने स्टैंड करते हैं, ठीक है। वैसे भी पेपर से नैगेटिव मार्किंग नहीं, किसी तुक्का ही लगा दो कि राइट आंसर की होगा, ठीक है। तुक्का तो लगाना ही है क्योंकि पेपर से नैगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ जी, तो राइट आंसर की होगा, द कलर ऑफ लोमी सॉइल इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। लोमी सॉइल का कलर की होंगे वा ब्लैकिश ब्राउन, ठीक है। या कई जगह से लिखा होगा ग्रे, वही काली जी भा मारता, ठीक है। तो ब्लैकिश ग्रे ब्राउन जो भी मतलब कि काले पंच होता है रंग, ठीक है। ये चीज़ है। तो एक क्वेश्चन मैंने होर याद आ गया, देखो एक ना पिछे जे सब इंस्पैक्टर का एग्जाम है, क्वेश्चन पूछा हुआ सी कि वो किहड़ी मिट्टी आ, वो किहड़ी मिट्टी आ जिहदे विच ड्रेनेज बहुत जरूरी है, ड्रेनेज जानी कि जिहदी निकासी करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन कितने लिखा तो नहीं होगा कि तुहानूं नहीं आ सकता, ठीक है। तो सब इंस्पैक्टर के एग्जाम से भी, तो इस तो इलावा इंटैलीजेंस के एग्जाम के बहुत वधिया लैवल की जीके पूछी गई सी, फिर TCS ने पेपर लिया ऑब्वियसली, ठीक है। तो तुसीं वो जीके के क्वेश्चन भी कर सकते हो। इंटैलीजेंस वाली वीडियो तो अपने चैनल के उपर पई हुई ने फ्री, ठीक है। तो सब इंस्पैक्टर दी ऐप से ने, बट तुसीं इंटैलीजेंस से देख ही सकते हो फ्री वालियां ते, ठीक है। उनके जो क्वेश्चन पूछा सीगा कि ड्रेनेज या निकासी किहड़ी मिट्टी की करनी बहुत जरूरी है, तो राइट आंसर की सीगा, काली मिट्टी,
ठीक है। काली मिट्टी जिहदे च आपां की है कपाह बीजते हैं, ठीक है। काली मिट्टी दे विच निकासी करनी बहुत जरूरी है। क्यों? देखो काली मिट्टी की खासियत की होंदी है कि काली मिट्टी है जिहड़ी जे इहदे च पानी पा दईए तां एक्सट्रीमली वैट हो जाती है, तो जे च पानी तो जे इस पानी ना पाइए तो ये एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो जे हम ये पानी पाया बहुत ज़्यादा पानी आके खड़ गया, ये एक्सट्रीमली वैट हो गई, वो की होंदा वा कि पौद्यां दी जड़ां नूं ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ठीक है। वो पौधे की खराब होंगे, इस करके ये चों एक्सैस वाटर कढ़ना पैंदा काली मिट्टी चों, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया सी किहड़ी मिट्टी की निकासी करनी जरूरी, उस एक्सट्रा पानी कढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया सी एक बारी, एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसे क्वेश्चन की कि लोमी सॉइल किमें दी हुंदी, उहदी कंपोजिशन की हुंदी है, ठीक है। लोमी सॉइल का जिहड़ा वध यूज आ लोमी सॉइल एक काहदे लई वरती जाती है, गार्डनस वगैरह के लिए आइडियल, ठीक है। जिवें काली मिट्टी कपाह की खेती लिए आइडियल, सो लोमी सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी गार्डनिंग के लिए आइडियल, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इंटरवल बिटवीन हाई टाइड एंड नीप टाइड, हाई टाइड ते नीप टाइड विच किन्ने समय का गैप, इहदा तुसीं आंसर देना, कमेंट च आंसर दसो। 12 घंटे 26 मिनट 15.5 घंटे तो 24 घंटे, हाई टाइड ते नीप टाइड दे विच किन्ने दा अंतर हुंदा? हाँ जी, तो राइट आंसर है 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होंदा। हुण जिहड़ियां टाइड्स आ ये की हुंदियां वा, टाइड्स हुंदी जवार भाटा जिहड़ा मून आ, ठीक है, वो समंदर के पानी नूं ग्रैविटेशनल पुल नाल खिंचदा, ठीक है। तो ये जो पानी उपर जाता उन्होंने आपां कहने हाई टाइड, तो नीप टाइड की हुंदा? नीप टाइड भी एक तरह की हाई टाइड ही है, बट ये कदों होंदी है जो अर्थ सन ते मून ये सारे आपस की है 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, राइट एंगल बना रहे होंगे, उस टाइम पर नीप टाइड होंदी है, ठीक है। ये सीगा आज की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो अगे देखते हैं आप सिजमिक सी वेव्स, सिजमिक सी वेव्स ਜਿਹੜੀਆਂ कि बहुत तेजी नाल बहुत ज़्यादा फोर्स नाल समुद्र ਦੀਆਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਿਜ਼ਮਿਕ सी वेव्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? कमेंट करो राइट आंसर। टाइड्स, सुनामी, करंट, साइक्लोन। तो कमेंट करो जल्दी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हुण तक कमेंट आ जाने चाहिए सारे। कमेंट करो हाँ जी। तो सिजमिक सी वेव्स देखो नाम तो पता चलता, सिजमिक वर्ड आप कितने सुनिया वा, सिजमिक सेंटर किहड़ा हुंदा वा? सिजमिक सेंटर हुंदा भूचाल का केंद्र है ना, जिथों भूचाल एवें शुरू होया हुंदा एवें स्प्रैड होना, वो हुंदा सिजमिक सेंटर। हुण सिजमिक सेंटर हुण सिजमिक वेव्स आ यानी कि समुद्र के विच भूचाल आ गया, समुद्र के विच भूचाल आ गया, वैसे देखिए ग्रेटर फोर्स नाल चलदियां है ना, तो बहुत ज़्यादा फोर्स नाल चलदियां वा, ते सिजमिक आ मतलब भूचाल वाली वेव्स उन्होंने आपां की कहने साइक्लोन सॉरी सुनामी, ठीक है। सुनामी टी साइलेंट है, सुनामी कहने हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि किमें हुंदी है सुनामी वगैरह काहतों हुंदी है वगैरह दस्सिया, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दे विच PDF दे विच अवेलेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करंट, इन्हां चों किहड़ी कोल्ड ओशियन करंट है? राइट आंसर गैस करो कमेंट दे विच। कमेंट करो जल्दी कि कोल्ड ओशियन करंट किहड़ी है? हाँ जी, तो कोल्ड ओशियन करंट किहड़ी आ? 2 तो बिना सारियां किहड़ियां 1 3 एंड 4 नाल एक्सप्लेन किया हुआ कि किधरों किधरों जाती वगैरह सब एक्सप्लेन किया हुआ वा। तो देखो कोल्ड ओशियन करंट सारियां वा, जिहड़ी ब्राजील करंट है ये किहड़ी आ? वार्म करंट है। हुण देखो कोल्ड ते वार्म दे विच की फर्क हुंदा? कोल्ड ओशियन करंट्स वो होंदियां ने जिहड़ियां कि हाई तो लो लैटीट्यूड वाल जांदियां, ठीक है। हाई तो लो लैटीट्यूड वाल जांदियां जां फिर जिहड़ियां इक्वेटर वाल जांदियां वो सारियां की हुंदियां? टूवर्ड्स इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा वाल जांदियां सारियां की हुंदियां? कोल्ड करंट्स हुंदियां, ठीक है। तो जिहड़ियां इदों उल्टा लो टू हाई वो सारियां की वार्म आ, ये चीज़ तुसीं याद रखनी है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਸੀ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਅਪ ਟੂ ਡੈਪਥ। ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੌਦੇ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ। करो द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कमेंट फास्ट। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तुक्का ही लगा दो, पता चले कि तुक्का कितना सोच के लगा सकते हो। हाँ जी, तो द राइट आंसर की है ऑप्शन नंबर 2 कि 200 मीटर तक ही अपने कोले की है समुद्र के विच प्लांट्स या वेजिटेशन है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हम चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर 11, अल नीनो अकर्स ओवर। अल नीनो जिहड़ा वा ये जो भी प्रोसैस आ कहंदे कित्थे हुंदा वा, एटलांटिक ओशन दे विच, इंडियन ओशन, पैसिफिक जां मैडिटेरियन, ठीक है। इन्हां चों किहड़े सी दे विच एल नीनो का प्रोसैस होंदा वा, ये तुसीं आंसर दसना है। ऑप्शन जल्दी कमेंट करो कि किहड़ा ऑप्शन राइट हो सकता है इत्थे। हाँ जी, तो राइट आंसर की होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, पैसिफिक ओशन, ठीक है। हम सुनिया होना अल नीनो हुंदा की है, अल नीनो ते ला नीना, ठीक है। ये स्पैनिश वर्ड है, फ्रेंच के भी आई थिंक ये वर्ड्स है, ठीक है। भाषा मैं एक दूसरे तो अडॉप्ट करती है ना वर्ड्स। अल नीनो ते ला नीनो ये दोवें प्रोसैस दोवें के दोवें कितने होंगे आ पैसिफिक ओशन च, ठीक है। मैं इत्थे एक बार लिख दिंदी हाँ कि दोवें कितने होंगे आ पैसिफिक ओशन च। बट हुंदा की है इहदे विच कि इहदे च की आ जिहड़ी ओशन की उपरली सरफेस है वो की होंदी है वार्म हो जाती है, समुद्र की उतली सतह की आ पानी की गर्म हो जाती है, ये की हो जाती है ठंडी हो जाती है, ठीक है। आ जिहड़ा प्रोसैस आ ये आम ही हुंदा रहिंदा वा, ठीक है। ये प्रोसैस आम ही हुंदा रहिंदा वा ते आ प्रोसैस रेयर है, कदे कदे 2 साल बाद, ईवन कि 7 साल बाद तक का भी गैप चला जाता, ठीक है। इन्ना रेयर प्रोसैस ला नहीं ना, ये समुद्र की उतली सतह कोल्ड होंदी है, मौत होंदी है। आ पैसिफिक ओशन च हुंदे आ दोवें, आप पैसिफिक ओशन च हुंदा, ठीक है। तो ये अपना सारा ला लीन का लीन का बेसिक आप डिस्कस किया, ठीक है। तो ये मतलब पैसिफिक ओशन होंगे है, सो चाहे ला लीना क्वेश्चन आंसर अपना पैसिफिक ओशन ही आऊगा, ठीक है। आ दसिया होगा कि अल नीनो अकर्स ओवर पैसिफिक ओशन, तेज हुंदा की है वार्म ओशन करंट्स होंगे हैं, बस, ठीक है। पानी के उपर इसका गर्म होंदी है। अगर देखो कन्वैक्शनल रेनफॉल, कन्वैक्शनल रेनफॉल कहते कितने होंदा, तो तुसीं गैस करना कन्वैक्शनल रेनफॉल, जो तुम्हें पता कन्वैक्शनल रेनफॉल है कि तुहानूं जगह आपसे भी पता लग जानी, ठीक है। इन्होंने पूछा कितने होंदा इक्वेटोरियल एरिया च, टैंपरेट, ट्रॉपिकल, पोलर किहड़े रीजन दे विच होंदा, ठीक है। तो तुसीं राइट ऑप्शन कमेंट करनी है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ जी, तो राइट आंसर की होगा कमेंट कर दो। देखो आंसर समझ के पहले सानू कन्वैक्शनल रेनफॉल पता होना चाहिए। तो देखो जिवें धरती है ना, इत्थे सूरज दी किरणां पैंदियां ते धरती की हो जाती है गर्म, तप जाती है, गर्म हो जाती है। तो इत्थे जिहड़ी आसे पासे हवा होंदी है ये गर्म होकर हल्की होंदी है ते उपर उठ के चली जाती है, ठीक है। उपर जाके जो हवा ठंडी होंदी है तो बदल बन जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बदलों चों फिर की आ मीह पैंदा, ये मीह किहड़ा आंदा कन्वैक्शनल रेनफॉल। तो बेसिकली ये मीह पिया कि धरती गर्म हुई, गर्म होने के बाद हवा हल्की होकर ऊपर चली गई, ऊपर जाके उसी हवा के बदल बने थे मीह पिया, ठीक है। ऑब्वियसली फिर धरती का गर्म होना जरूरी है इस प्रोसैस के लिए, यानी कि कितने होंगी है हॉट क्लाइमेट के विच, ठीक है।
सो हॉट क्लाइमेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਟਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਕੁਏਟਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ, ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਪਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ ਰੇਨਫਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਤੇ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਟਿਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰੇਨਫਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ, ओरोग्राफिक ਤੇ ਸਾਈਕਲੋਨਿਕ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਨਫਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨਲ, ओरोग्राफिक ਤੇ ਸਾਈਕਲੋਨਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਲੈਂਡ ਤੇ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੈਂਡ ਤੇ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਗਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ, ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਈਡਸ, ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। जिन्हों ने राइट आंसर कमेंट कर दिता अपने दिमाग च होर जो रिलेटेड फैक्ट्स पता होंगे ना उन्होंने बारे जोर पा के सोचा करो कि सानू इस चीज़ बारे होर की पता, तो जो थोड़े बारे तुम जो भी कुछ पढ़िया थोड़े माइंड च रिवाइज होगा। ठीक है, मान लो किसी ने तो राइट आंसर कमेंट करता जी वन, किसी ने करता कमेंट करके वेले हो गए ना, दिमाग से जोर पा के सोचा करो कि सानू होर की पता वा ये बारे, तो जो फैक्ट्स लंबे टाइम में सानू याद जो भी असी इनफॉर्मेशन पढ़ी है। तो हाँ जी, राइट आंसर की है कन्वैक्शन। ठीक है, इसका राइट आंसर की है कन्वैक्शन। ठीक है, दस्या हुआ है कि किवें, बाकी मैं तुहानूं एक्सप्लेन तो किया, बाकी मैं बोल के दस दी। देखो जिहड़ियां ब्रीजिज आ ये टू टाइप्स दी हुंदियां, क्या जिहड़ियां हवावां वगदियां ये दो तरह दी, लैंड ते सी ब्रीज। ठीक है, हुंदा की आ ये जिहड़ी लैंड ब्रीज आ एक किहड़ी आ सी ब्रीज। ठीक है, दोवें जी जे आप गल करिए तो एक इन्हों चो दिन समय वगदी है तो एक समय देख लो। ठीक है, हुंदा की आ कि जो समुद्र ज़्यादा गर्म हो जाता है, जो समुद्र ज़्यादा गर्म हो जाता, समुद्र के आसे पासे धरती भी हैगी आए तो, पर जो समुद्र ज़्यादा गर्म हो जाता धरती भी गर्म होती वैसे, पर मान लो आ ज़्यादा गर्म हो गया तो की आ इधरों हवावां इधर वगदी। ठीक है, जो की आ धरती ज़्यादा गर्म होती तो हवा धरती तो समुद्र वाल वगदी है। ठीक है, जी हवा धरती तो समुद्र वाल जाती है लैंड ब्रीज आ, जी समुद्र तो धरती वाल जाती है वो सी ब्रीज। ठीक है, लैंड वाला काम की रात में होंगे वा, सी ब्रीज दिने वगदी है, यही फर्क आ, एक्सप्लेन इतने किया हुआ। अगे देखो इन्हों चो हाईएस्ट क्लाउड किहड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट क्लाउड, सिरियस, स्ट्रेटो, क्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस ते क्यूमुलस, इन्हों चो किहड़ा हाईएस्ट क्लाउड है, इन्होंने चार ऑप्शन से तुसीं गैस करना। ठीक है, राइट आंसर अपना कमेंट करो। ये भी एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सीरीयस की है सब तो हाईएस्ट क्लाउड आ। ठीक है, इन्हों की ऊंचाई वगैरह दसी हुई है कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर ही मिलते हैं। सीरीयस एक स्टार का नाम भी इसको गैस करना काफ़ी ईजी सी। ठीक है, एक स्टार का नाम भी सीरीयस है। तो एक चीज़ होर कि ये बने काहदे हुंदे, ये बने हुंदे आ आइस के जोड़े भी क्लस्टर्स होंगे। ठीक है, आइस तो बने होंगे बहुत उच्चे, ऑब्वियसली बर्फ की बनी होंगे इन्ने उच्चे बदल। ठीक है, क्योंकि टैंपरेचर बहुत लो हो जाता है, आइस क्लस्टर्स से बने होंगे। अगे देखो विंड रोज किनू रिप्रजेंट करता, विंड रोज। ठीक है, तो सोचो तो आंसर कमेंट करो, विंड रोज की रिप्रजेंट करता, विंड टर्बूलेंस, विंड डाटा, विंड प्रैशर या विंड टैंपरेचर, किहड़ी चीज़ शो करता। पेपर एक मिक्स लैवल का आने की उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चन जिमें कि मल्टीपल ऑप्शनस वाले मैच का कॉलम वाले पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरैक्ट होंगे, फैक्ट्स बेस्ड होंगे। ठीक है, सो एक मिक्स लैवल का पेपर आने की काफ़ी उम्मीद है।
हाँ जी, तो विंड रोज किनू रिप्रजेंट करता? जे कोई साउंड की प्रॉब्लम हो सॉरी है ना, आप अगे तो ध्यान रखा। तो बाकी कोई नहीं, आंसर करो। विंड रोज किनू रिप्रजेंट करता? तो देखो विंड रोज की वा एक ना सर्कुलर जहा चार्ट जहा होंगे वा करके, ठीक है, जिਵੇਂ डाटा जहा दसिया होंगे वा। इस चार्ट के लोकेशन के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर लोकेशन से विंड की स्पीड की आ, विंड की डायरैक्शन की है, ये इन्फॉर्मेशन होती है। विंड की स्पीड तो डायरैक्शन की इन्फॉर्मेशन होती है, जानी कि कह लो कि विंड टर्बूलेंस बारे दसता वा, ठीक है। विंड की स्पीड तो डायरैक्शन का एक चार्ट होंगे है, तो विंड टर्बूलेंस बारे दसता वा। कहते किहड़ी एटमोसफेयर की लेयर के विचों रेडियो वेव्स टकरा के वापस मुड़ आउंदी। द लेयर ऑफ एटमोसफेयर इन विच रेडियो वेव्स आर रिफ्लैक्टेड बैक इज कॉल्ड आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। इन्हां चों किहड़ी लेयर हुंदी आ? राइट आंसर कमेंट करो। कमेंट फास्ट। हाँ जी, तो ये राइट आंसर की है आइनोस्फीयर, ठीक है। हम तुहानूं पता ही होगा आइनोस्फीयर, मैं पहले दस्सिया सी आइनोस्फीयर कित्थे हुंदा वा। आइनोस्फीयर हुंदा वा थर्मोस्फीयर दे विच ही, है ना। आइनोस्फीयर थर्मोस्फीयर दे विच ही हुंदा वा, इहदे विच ही कि सैटेलाइट्स वगैरह हुंदे आ, है ना। इहदे विच ही की आ आइनोस्फीयर दे विच, आइनोस्फीयर ते थर्मोस्फीयर इक्को लेयर दे विच हुंदे, इहदे विच ही की इत्थे सैटेलाइट्स वगैरह हुंदे आ। जदों इत्थे अपने सिग्नल जांदे आ तो इत्थों टकरा के की आ रिफ्लैक्ट होके एवें स्प्रैड हुंदे आ ते अपने सिग्नल की कवरेज की आ इनक्रीज होंदी है, ठीक है। इन्हूं आपां कम्यूनीकेशन दे लई यूज़ करते हैं। अगे नैक्सट देखो, सब तो वड्डा सर्कल किहड़ा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट सर्कल? सब तो वड्डा सर्कल किहड़ा वा? आर्कटिक, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न? इनू गैस करना बहुत ईजी है, अज के लैक्चर च मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी है चीज़, ठीक है। तो इन्हू गैस करना बहुत ईजी है। राइट आंसर कमेंट करो, विच इज़ द राइट ऑप्शन। कमेंट फास्ट। हाँ जी, तो मैं तुहानूं की दस्सिया सी, जिवें अपनी अर्थ आ, ठीक है, अर्थ के विचाले इत्थे एक लाइन लंघदी जिन्होंने आपां इक्वेटर कहने आ, जां भूमध रेखा कहने। भूमध नाम तो पता लगता भूमि के बिल्कुल मध चों, सेंटर चों। इक्वेटर तो पता चलता वा कि इधरों तो इधरों इक्वल दूरी ते है ना, नॉर्थ पोल ते साउथ पोल दोवां तो बराबर दूरी ते लाइन है इक्वेटर। तो यही सब तो बड़ा सर्कल होगी, क्यों? क्योंकि जो आप उपर जाने हैं तो देखो चढ़ाई घटी जाती है, तो सर्कल की है छोटे हो जाते हैं। सर्कल की है छोटे हो जाते हैं, तो बिल्कुल सेंटर वाला सर्कल ही सब तो बड़ा सर्कल है, यानी कि इक्वेटर इज द राइट आंसर, ठीक है। भूमध्य रेखा सब कुछ ये बारे एक्सप्लेन किया हुआ है। नैक्सट देखो, हैंगिंग वैली इज फॉर्म ड्यू टू द एक्शन, है ना। हैंगिंग वैली देखो जी डायग्राम बनी हुई चीज़ है ना, ये हैंगिंग वैली है, ये एक यू शेप्ड वैली है, लटकती हुई महसूस हो रही है, जो कि कुछ टंगिया होंगे है ना, जिवें इत्थों आए बस इन्हें फोल्ड किया तो उन्हें हैंगिंग वैली कहते हैं, यू शेप्ड वैली भी कह देंगे। ये क्यों बनी है? ग्लेशियर करके, रिवर करके, ओशन करके, या हवावां करके खुरगी है? किवें बनी ये वैली? ठीक है, माउंटेन्स तो बनी है, बट इन्हें चो किहड़ी चीज़ करके बनी है? कमेंट द राइट आंसर। वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ जी, तो राइट आंसर की है ग्लेशियर। ये ग्लेशियर ने बनाई होंगी। देखो ना ग्लेशियर की होंगे आ, जिमें बर्फीले इलाकों जड़ियाँ नदियाँ वगदियाँ बर्फ दियाँ, जिमें पहला बर्फ जमी होंगी आ, जो टैंपरेचर थोड़ा जिहा हाई होंगे बर्फ पिघलती तो नदियाँ वगदियाँ, है ना, उन्होंने आप ग्लेशियर कहने आ। तो जिमें ग्लेशियर दी ट्रिब्यूटरीज भी होंगी एवं करके, जिमें मेन नदी जो कुछ भी पासे लंघदे उन्होंने आप ट्रिब्यूटरी कहने आ, वो इत्थों दी लंघदियाँ वार वार तो इन्हूं खोरदियाँ वा, ठीक है, माउंटेन्स नूं। तो ग्लेशियर्स ने इन्हूं खोर के बनाया हुआ, एक तरह की ग्लेशियर की एक तरह की ट्रिब्यूटरी वैली है ना, जिमें ग्लेशियर का एक हिस्सा इत्थों दी लंघदा वा, तो एक तरह की ट्रिब्यूटरी वैली है।
ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਯੂ ਸ਼ੇਪਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਐਵੇਂ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਿਨ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।